हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ द डायसेक्टेड ट्रूथ। एंड आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट डेवलपमेंट ऑफ यूरिनरी सिस्टम। सो क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं? किडनी का डेवलपमेंट, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा। अदर देन दैट, मेनली जो किडनी है दैट इज गोइंग टू डेवलप फ्रॉम द मीजोडर्म, दैट इज स्पेशली इंटरमीडिएट मीजोडर्म which is developing along the posterior wall of abdominal cavity, and intermediate mesoderm से बनते हैं हमारे तीन structures. So we have pronephros, mesonephros and metanephros. So we will talk about these three things: pronephros, mesonephros and metanephros. तो ये तीनों ही स्ट्रक्चर्स मीजोडर्म से बनने वाले हैं। एंड डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में इन्हीं स्ट्रक्चर्स से किडनी डेवलप होती है। कुछ ऑर्गेनिजम्स में मीजोनेफ्रिक किडनी होती है जो मीजोनेफ्रॉस से डेवलप करती है, लेकिन हम ह्यूमंस की बात करने वाले हैं। सो वी विल टॉक अबाउट प्रोनेफ्रॉस, जो कि पहले बनेगा एंड देन इट विल जस्ट डिसअपियर, इट विल गो अवे, इट विल डीजेनरेट. After that, mesonephros will form, and after that, metanephros is formed. जो हमारी किडनी बनने वाली है वो मेटानेफ्रोस से बनने वाली है। एंड दीज स्ट्रक्चर्स, प्रोनेफ्रोस, मीजोनेफ्रोस, मेटानेफ्रोस, जो कि मीजोडर्म से डिराइव होने वाले हैं, स्पेशली इंटरमीडिएट मीजोडर्म से डिराइव होने वाले हैं, वो बनेंगे हमारे एम्ब्रियो के डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे। लाइक फॉर एग्जाम्पल, सर्वाइकल लेवल पे प्रोनेफ्रॉस बनता है, थोरैसिक टू लंबर मीजोनेफ्रॉस बनता है, एंड उसके भी लोअर एंड पर यानी कॉर्डली मेटानेफ्रॉस बनता है। तो हमारे में जो प्रोनेफ्रॉस बनेगा और मीजोनेफ्रॉस बनेगा, इट विल एक्चुअली डीजेनरेट, इट विल जस्ट डिसअपियर, गो अवे. देन मेटानेफ्रॉस जब डेवलप करेगा, इट विल फॉर्म द एक्चुअल किडनी इन ह्यूमन बॉडी. सो लेट अस टॉक अबाउट ऑल द थिंग्स. सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ यूरिनरी सिस्टम, जैसा कि मैंने बताया, दोनों ही जेनाइटल सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम साथ में कॉमन रिज से डेवलप होते हैं, एंड दैट कॉमन रिज इज डेवलप्ड फ्रॉम और derived from mesoderm. What specific mesoderm? We will talk about intermediate mesoderm. It will develop along the posterior wall of abdominal cavity, and the kidney system will have three things developing: pronephros, mesonephros, and metanephros. This will be rudimentary, non-functional, disappear. This is functional for a short period of time, but it will also disappear completely in females. But a part of mesonephric duct will remain in males because it will help in development of earth structure in their genital system. So we will talk about that also, but in the other video, which will focus on the genital system. Is it okay? Should we move? So you can see pronephros. When does it develop? It begins forming at fourth week. There are 7 to 10 solid cell groups in the cervical region. They will form a vestigial excretory unit that is not actually functional, and it will disappear, it will regress by the end of fourth week. All good? So let us move on. Mesonephros. And from mesonephros, there will be some structures developing. I will talk about it. Let us go to a diagram first. We will discuss from the diagram. Sabse pehle. So you can see this is the diagram of a developing embryo, in which you can see we had trilaminar disc. If you remember, the ectoderm, mesoderm and endoderm. And you can see the mesoderm in between, it is differentiating. So you can see paraaxial mesoderm, intermediate mesoderm. And क्योंकि यूरिनरी सिस्टम इंटरमीडिएट मीजोडर्म से बन रहा है, तो आप देख सकते हो इंटरमीडिएट मीजोडर्म इज डिफरेंशिएटिंग टू फॉर्म नेफ्रोटोम.
This structure here is nephrotome, which will later on become a tubule kind of structure. That means it will become hollow inside. So this will be the nephric tubule. Can you see here? Also, you can see dorsal aorta that is giving out branches to become the glomerulus. As you can see, this is the Bowman's capsule, this is the glomerulus, and this is the other part of the nephric tubule that will develop into PCT, DCT, and loop of Henle. Like if this is okay for you, we can move forward. नाउ आई वांट टू शो यू कि इस डायग्राम में दो चीजें हैं हमारे पास. एक है एक्सटर्नल ग्लोमेरुलस जो कि बॉडी कैविटी के अंदर जाके एम्बेड हो रहा है, एंड देयर इज इंटरनल ग्लोमेरुलस दैट विल जस्ट गो एंड लाइक मेक द ग्लोमेरुलस ऑफ विद द नेफ्रिक ट्यूब. दैट मीन्स ये फिर नेफ्रॉन के साथ जा रहा है. सो व्हाट हैपेंस इज हमारे में ऐसा नहीं होता है. जो जो एक्सटर्नल ग्लोमेरुलस बना हुआ है जो कि बॉडी कैविटी में जाके एम्बेड हो रहा है, इसका ये मतलब है कि जो भी फिल्ट्रेट होता है पहले बॉडी कैविटी में जाता है बिफोर एंटरिंग द एक्चुअल नेफ्रॉन. एंड दिस एक्चुअली हैपेंस इन सम लोअर organisms, lower chordates or vertebrates. You can see primitive fishes and some amphibians. So this happens in lower vertebrates. Got it? Then you can see this diagram जिसमें development of pronephros, mesonephros and metanephros दिखाया हुआ है. In orange you can see pronephros जिसमें cell groups, multiple cell groups present हैं. That will regress later on. As you can see vestigial pronephric system मतलब वो vestigial है, काम नहीं करेगा, it will disappear. And then you can see this blue thingy that is unsegmented intermediate mesoderm जो कि mesonephric system है जो कि धीरे धीरे डिफरेंशिएट करेगा. एंड यू कैन सी धीरे धीरे इसके सेल ग्रुप्स बन रहे हैं एंड धीरे धीरे इसके सेल ग्रुप्स अंदर से हॉलो होके एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल बना रहे हैं. तो ये जो ट्यूब्यूल जैसा स्ट्रक्चर ये बनाएंगे दैट विल बी द एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल. And these excretory tubule will be joined to this duct that will be the mesonephric duct. And lastly, you can see in black that is the metanephric kidney system that will be your actual kidney जिससे तुम्हारी actual adult kidney जो अब हमारी बनेगी वो metanephric kidney होगी. So you can see the metanephric kidney and a yellow structure, a yellow thing arising from mesonephric duct entering your metanephric kidney. So from the mesonephric duct, you can see a ureteric bud coming out and embedding into the metanephric kidney. This you can see later on in a better diagram. You can see again the mesonephric duct from which a ureteric bud is arising and it is getting embedded in the metanephric blastema or metanephric kidney. Now, if this makes sense, we can move on. Got it? So for mesonephros, I want to tell you that there will be the mesonephros, the actual cell groups, the mesonephros and the mesonephric duct. Again, they are derived from intermediate mesoderm in the region of upper thoracic to upper lumbar segments in that region. Early in fourth week of development, first excretory tubule appears. And I want to tell you what is excretory tubule. Again, excretory tubule will be this. Like the mesonephric cell groups will hollow out and they will form excretory tubules. These excretory tubules will be S-shaped and they will form the glomerulus. The Bowman's capsule, this will be the Bowman's capsule. A tuft of capillary will come here and will form the glomerulus, and the other part of this S-shaped
excretory tubule will form PCT, loop of Henle and DCT. So you can see that here. देखो here. So पहले excretory tubule बनेगी, first excretory tubule in the early of like in the beginning of the 4th week, and it will lengthen rapidly to form a S-shaped loop. A tuft of capillary will acquire the space in there. This will become the Bowman's capsule. This will become the glomerulus, the tuft of capillaries. And जो बाकी का इसका part है, it will lengthen and will lead to formation of PCT, loop of Henle and DCT. If that makes sense. Should we move forward? Right? And then what will happen? Laterally, like as you can see, laterally these excretory tubules will join the mesonephric duct. That will be the collecting duct of that nephron, the nephron that we are talking about. So you can see laterally the tubule enter longitudinal collecting duct called mesonephric duct or the Wolffian duct. If that's okay, we should move forward. So now what will happen in the middle of 2nd month? Mesonephros forms large ovoid organs on each side of midline. What they are trying to say is, जो mesonephros है, जो कि urinary system का part है, वो एक ovoid organ बनाएगा midline में, and along with that there is another structure that is present, developing gonads. सो बोथ ऑफ दीज मीजोडर्म्स, क्योंकि अभी वो डेवलपिंग है, अभी वो डेवलप हुए नहीं है, दे विल बी जस्ट लाइक ग्रुप ऑफ मीजोडर्मल सेल्स. सो दे विल फॉर्म अ रिज कॉल्ड यूरोजेनाइटल रिज, जिसके बारे में हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में भी बात किया था कि जेनाइटल सिस्टम एंड यूरिनरी सिस्टम दे बोथ डेवलप्स फ्रॉम अ कॉमन रिज, दैट इज अ मीजोडर्मल रिज. दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर. ठीक है, चलें आगे. सो नाउ व्हाट हैपेंस इज, क्योंकि मीजोनेफ्रॉस वाला जो पार्ट है वो भी हमारे किसी काम का नहीं है और वो भी डिसअपियर हो जाएगा विद टाइम. सो दे आर सेइंग, जैसे तुम देख रहे हो ये सारा मीजोनेफ्रिक पार्ट है, अब धीरे धीरे ये सेल ग्रुप्स में डिवाइड हो रहा है और धीरे धीरे फिर इसमें ये हॉलो होता जा रहा है और इसमें एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल बन रही है. सो दे से कि जब कॉडल एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स अभी भी बन रही होती हैं, the cranial ones start to disappear already. Do you get it? मतलब जब यहाँ पे अभी भी एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स बन रही हैं, तब ये क्रेनियल वाली ट्यूब्यूल्स ऑलरेडी डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाती हैं. एंड इन मेल्स, see, majority of them will disappear till the end of 2nd month. In females, they disappear completely, but in males, a few caudal mesonephric ducts, they remain, they persist, and they participate in the formation of genital system. If that is okay, we will move forward because mesonephros bhi gaya, khatam, over. So now we will move on to the part where we have to talk about the definitive kidney, because that will be the actual kidney जो हमारी बन रही है मेटानेफ्रॉस से. मेटानेफ्रॉस अगेन हमारा एक स्ट्रक्चर है जो इंटरमीडिएट मीजोडर्म से ही डिराइव हुआ है और मेटानेफ्रॉस अपीयर करता है इन द 5th वीक. सो इट अपीयर्स इन द 5th वीक. इसकी भी एक्सक्रीटरी यूनिट्स वैसे ही बनती हैं जैसे मीजोडर्मल मीजोनेफ्रॉस से हमने अभी पूरी एक्सक्रीटरी यूनिट बनाई थी, बिल्कुल सेम तरीके से बनती है. आई शो यू. सो सबसे पहले हम इसके डक्ट सिस्टम की बात करते हैं एंड वी विल स्टिल गो ऑन टू दैट डायग्राम जो हमने पहले देखा था, जिसमें मीजोनेफ्रिक डक्ट है. मीजोनेफ्रिक
जिसमें से एक यूरेट्रिक बड अराइज होती है एंड इट एम्बेड द किडनी, द मेटानेफ्रिक किडनी. नाउ व्हाट विल हैपन, जो तुम्हारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है जिसमें किडनी में सारी चीजें होती हैं, तो तुम्हें अब बाहर यानी यूरेटर से अंदर की तरफ जाना है, और सारी डेवलपमेंट जो है यूरेटर से ऐसे किडनी के अंदर की तरफ जाती हुई होगी. तो इस बात का ध्यान रखना, बिकॉज नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट इज हैपनिंग. ओके, सो दिस इज द एक्चुअल यूरेटर जो किडनी को एम्बेड कर रहा है. तो क्या होता है, जो ये यूरेटर आता है, दिस यूरेटरिक बड, it divides into two, that becomes the major calyx. ठीक है, the ureter divides into two, that makes the major calyx. Now each of these major calyx will start to branch, and it will continue to branch until 12 generations or more, like 12 टाइम्स और 12 जनरेशंस तक ये ऐसे डिवाइड करता रहेगा, या उससे ज्यादा भी डिवाइड कर सकता है. उसके बाद जो इनिशियल यानी शुरू शुरू की 3 से 4 जनरेशंस हैं, दे विल मर्ज टुगेदर लाइक दिस, like they will merge and they will form the minor calyx. Can you see? Like जो भी हमने ये 3-4 generations बनाई थी उसको हमने merge कर दिया, and now it is making up the minor calyx, if that is okay. And जो भी इसके बाद जितनी भी ट्यूब्यूल्स इसके बाद की बचेंगी, क्योंकि 12 जनरेशंस तक मैंने बोला है, 12 या फिर उससे ज्यादा जनरेशंस तक ये डिवाइड करता है. शुरू की 3-4 जनरेशंस हमने उसको कंबाइन कर दिया और माइनर कैलिक्स बोल दिया. तो जो भी बाद की जनरेशंस होंगी, दे विल बिकम द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स. सो नाउ लिसन, क्या लिखा है एक बार देख लेते हैं. सो वी हैड द यूरेट्रिक बड, जो कि एक आउटग्रोथ है मीजोनेफ्रिक डक्ट में से जो आ रही है. ठीक है, इट इज पेनिट्रेटिंग द मेटानेफ्रिक टिश्यू, देन इट डायलेट्स फॉर्मिंग द प्रिमिटिव रीनल पेल्विस. सो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे रीनल पेल्विस लिखा था, बिकॉज इट डायलेट्स, थोड़ा सा डायलेट हो जाता है, एंड इट फॉर्म्स द रीनल पेल्विस. देन दैट रीनल पेल्विस splits into two, that will be your major calyx. Then हर एक major calyx it will start to branch, penetrating the metanephric kidney more and more, and it will branch until 12 or more generations. Then tubules of second order, they enlarge. The tubules of second order, they enlarge to absorb third, like those tubules of third and fourth generation, forming the minor calyx. Then, during further development, the collecting tubule of fifth generation and the further generations, they will form, like they will converge on the minor calyx. Can you see? Like all these tubules will converge on the minor calyx. Got it? I can show you another diagram which is nice. As you can see, this was the ureteric bud. ये dilate हो गई. It formed the renal pelvis. Then it divided into two. That will become your major calyx. Then those two starts to like branch and branch and branch. And can you see पूरा ये मेटानेफ्रिक किडनी के अंदर जाता जा रहा है. Then second generation का जो branch था, it will like elongate and merge with the third and fourth generation branching, and they will form the minor calyx. And minor calyx के आगे जितनी भी branching होंगी, they will become the collecting tubules. Now you tell me, collecting tubules.
if that's okay. So let us move forward. Now we have the excretory system. Now I want to tell you what will happen. We'll just go to a diagram. This one. So क्या हुआ, ये हैं कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, द येलो वंस. दीज आर द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स जो कि पूरा पेनिट्रेट करके मेटानेफ्रिक किडनी के अंदर तक जा चुकी हैं. सो हियर यू कैन सी द मेटानेफ्रिक टिश्यू कैप्स, क्योंकि इसके एंड पर मेटानेफ्रिक टिश्यू ही होगा, दैट इज फॉर्मिंग द मेटानेफ्रिक टिश्यू कैप. Now what will happen, because this is the epithelial duct and this is the mesenchymal tissue or mesodermal tissue, there will be an interaction between these two, that is known as mesenchymal epithelial interaction, or you can call it epithelial mesenchymal interaction. Like these two group of cells with will interact with each other and they will signal each other, due to which this metanephric tissue cap will start to condense and differentiate, and again it will form an S-shaped tubule, out of which this part will become the Bowman's capsule, in which the tuft of capillaries will come, and the other part of this tubule will elongate to form PCT, DCT, and the loop of Henle. Do you get it? Is it okay? And then all of that thing will join the collecting tubule that will just collect the urine that is formed and it will just take it to the outside. Now, do you get it? I'll show you same thing written here. जो भी नई ट्यूब्यूल बनेगी उसके एंड में मेटानेफ्रिक टिश्यू कैप होगी. यहाँ पे इंडक्टिव इन्फ्लुएंस होगा, इन दोनों का इंटरैक्शन होगा, और अंडर द इंडक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ द ट्यूब्यूल इस मेटानेफ्रिक टिश्यू कैप से रीनल वेसिकल्स बनेंगी. Like it will form an S-shaped tubule which will form everything, and I already told you the Bowman's capsule, PCT, loop of Henle, DCT, right? And nephrons हमारे बनते ही रहते हैं until birth, and till the birth we will have around 1 million nephrons in each kidney. यूरिन प्रोडक्शन अर्ली इन जेस्टेशन ही स्टार्ट हो जाता है, as you might have heard about this thing, that the baby is like gulping the amniotic fluid, filtering it out, and whatever filter it does with the kidney, वो उसको बाहर ही amniotic fluid में रिलीज कर देता है. Like this is what it is doing. The baby is taking the amniotic fluid, वो amniotic fluid अंदर जाएगा, किडनी के थ्रू पास होगा, एंड देन वही सेम चीज बाहर आ जाएगी. एंड आई वांट टू ऐड ऑन कि जो भी बेबी का यूरिन है एट द टाइम ऑफ द जेस्टेशनल पीरियड, इट विल नॉट कंटेन एनी टॉक्सिक सब्सटेंस, क्योंकि जो भी यूरिन है वो बाहर एमनियोटिक फ्लूइड के साथ ही मिक्स हो रहा है, एंड अगर उसमें टॉक्सिक चीजें होंगी तो बेबी विल बी इन द टॉक्सिक एनवायरमेंट और द टॉक्सिक चीजें. Oh my God. Toxic environment, as we all are. Okay. So the baby should not be around toxic things, toxic wastes. That's why जो भी बेबी एमनियोटिक फ्लूइड एनगल्फ कर रहा है बस उसी का फिल्टर होके वापस बाहर एमनियोटिक फ्लूइड में आ जाता है. सो अगर किडनी के डेवलपमेंट में कोई प्रॉब्लम होगी, सो बेबी विल नॉट बी एबल टू डू दिस, एंड इट विल लीड टू अ प्रॉब्लम इन द अमाउंट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द amniotic fluid. Does that make any sense to you? Should we move? Okay. Also, जब बेबी का बर्थ होता है, द किडनी इज लोब्यूलेटेड लाइक दिस, इट हैज लोब्यूल्स,
but this is not any disease. This is just normal physiological development. And when the baby matures, थोड़ा time जब बीत जाता है, तो ये lobules they disappear and the kidney becomes bean shaped. Is it good? चलें आगे. Because now we have to talk about the molecular regulation of kidney development, which is very important because it involves epithelial mesenchymal interaction, जो कि मैंने पहले बोला था. जो ट्यूब्यूल है, द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, दैट इज द epithelial tissue. Metanephric cap, that is the mesenchymal tissue. So they both are interacting with each other. कैसे? I'll tell you. जो भी मेटानेफ्रिक टिश्यू है, it expresses a transcription factor called WT1. ये जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, it makes this tissue competent to respond to the induction by ureteric bud. सबसे पहले ये जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्सप्रेस हो रहा है, इसकी वजह से ही ये टिश्यू इस टिश्यू के साथ इंटरैक्ट कर पाएगा. गॉट इट? इसके अलावा जो ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्सप्रेस हुआ, इसकी वजह से बनेंगे दो और फैक्टर्स. इट विल रेगुलेट द प्रोडक्शन ऑफ ग्लायल डिराइव्ड न्यूरोट्रोफिक फैक्टर GDNF and hepatocyte growth factor HGF और स्कैटर फैक्टर. गॉट इट? अब ये जो फैक्टर बने हैं, इनका रिसेप्टर बनाता है ये. दे आर बोथ इंटरैक्टिंग विद ईच अदर. इसने कुछ फैक्टर्स क्रिएट किए, बनाए, तो ये क्या बनाता है? ये उनका रिसेप्टर बनाता है. So this epithelial tissue will synthesize some tyrosine kinase receptors. That will be RET receptor for GDNF and MET receptor for HGF. फैक्टर बन गया, रिसेप्टर बन गया. क्या होगा? They will combine together, they will establish some signaling pathway. इन दोनों टिश्यूज के बीच में कुछ सिग्नल्स चलेंगे. And then the ureteric bud will induce mesenchyme via two other factors, fibroblast growth factor 2 and bone morphogenic protein 7. ये यूरेट्रिक बड निकालेगा और इसको मीजेनकाइम को इंड्यूस करेगा. क्या करने के लिए? मेटानेफ्रिक मीजेनकाइम का जो मेटानेफ्रिक टिश्यू है उसको प्रोलिफरेट करने के लिए, ताकि आगे की डेवलपमेंट हो सके, सारी चीजें उसमें से बन सके. वो एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल, एस शेप ट्यूब्यूल, बोमन्स कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी, एवरीथिंग, सब कुछ बनाने के लिए ये काम करता है. So what it does, it blocks apoptosis, it stimulates proliferation in metanephric mesenchyme while maintaining the production of WT1, the transcription factor which we did here. Now, if that's okay, we can move forward. और भी है. So what else happens? Ureteric buds express करते हैं ये दो factors WNT9B and WNT6, which upregulates PAX2 and WNT4. What does it do? PAX2 promotes condensation of the mesenchyme, that is again preparing for tubule formation. Same thing. वही tubule development, tubule formation, Bowman's capsule and everything के लिए ये सिग्नल करता है. इसके अलावा ये भी सेम ही काम कर रहा है. एज यू कैन सी, इट कॉज mesenchymal condensation to epithelialize and form the tubules. Do you get it? पूरा ट्यूब्यूल्स बनाने के लिए एंड एवरीथिंग करने के लिए ये सिग्नल करता है. सो इट इज द सेम थिंग. Also, there is one more thing that is happening here. That is modification of extracellular matrix.
जो भी सेल्स के आसपास एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स होता है वो भी मॉडिफाई हो जाता है. एंड हाउ डज इट मॉडिफाई? फाइब्रोनेक्टिन, कोलाजन 1 एंड कोलाजन 3 जो इसमें प्रेजेंट है एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स में, it will be replaced by laminin and type 4 collagen, which is a characteristic of epithelial basal lamina, जो हमें यहां पर चाहिए. इसके अलावा कुछ सेल एडहेजन मॉलिक्यूल्स होते हैं, सिंडिकेन एंड ई कैडेरिन, which are essential for condensation of mesenchyme into epithelium, and they are also synthesized here. अगर हमें ये सारी बातें समझ में आती हैं तो हमारा मॉलिक्यूलर रेगुलेशन भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है. नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड and we will talk about some clinical correlations in which you can see first is Wilms tumor, which is the cancer of kidney, and it is happening due to mutation of WT1 gene that is present on short arm of chromosome number 13. ये वाला ट्यूमर अकेला भी हो सकता है, और ये वाला ट्यूमर इट कैन बी एसोसिएटेड विद सम अदर डिजीज, सम अदर सिंड्रोम लाइक वैगर सिंड्रोम, WAGR सिंड्रोम, जिसमें हमारे पास होता है विल्म्स ट्यूमर, एनीरीडिया दैट इज iris, complete or partial absence of the iris, gonadoblastomas, that is the tumor of gonads, and mental retardation. R is for mental retardation. So this is a syndrome जिसमें Wilms tumor एक tumor है that is present along with other things also. Other than that, we have other syndrome, Dennis-Drash syndrome, अगेन जिसमें बहुत सारी मल्टीपल चीजें होती हैं, इंक्लूडिंग विल्म्स ट्यूमर, रीनल फेलियर, एम्बिगुअस जेनिटेलिया एंड विल्म्स ट्यूमर. Then we have renal dysplasia or agenesis. That means malformation or not formation at all of kidney. So this will require dialysis and transplantation in the first year of life itself, क्योंकि किडनी बन ही नहीं रही है ठीक से. Then we have multicystic dysplastic kidney, in which there will be multiple cysts in the kidney. Nephrons fail to develop, and ureteric bud. Do you remember कि अभी यूरेट्रिक बड से ही ब्रांचेस हो रही थी, तो वो हुई नहीं है. ठीक है, अगेन रीनल एजेनेसिस, इट विल लीड टू रीनल एजेनेसिस. Then we have Potter sequence, which is very important. Again, क्या होगा इसमें? पॉटर सीक्वेंस इज अ डिजीज जिसमें रीनल फेलियर हम बोल सकते हैं, एन्यूरिया, दैट इज कंप्लीट एब्सेंस और नियर एब्सेंस ऑफ यूरिन प्रोडक्शन. नाउ अगर यूरिन प्रोड्यूस ही नहीं होगा, सो आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि वो जो अपने आसपास एमनियोटिक फ्लूइड है, बेबी इज एनगल्फिंग दैट. नाउ बेबी इज एनगल्फिंग दैट, बट उसके बाद वो उसको यूरिन के थ्रू बाहर नहीं फेंक पा रहा. So what will happen to the amniotic fluid? It is going inside the baby, but it is not coming out. मतलब जो बाहर amniotic fluid है, it will decrease in quantity, it will decrease in volume, that is oligohydroamnios. This is important. Fine. Along with that, there are hypoplastic lungs secondary to oligohydroamnios. मतलब oligohydroamnios की वजह से ही hypoplastic lungs, that means lungs are not developing nicely, this condition will also take place. Fine. इसके अलावा कुछ सिस्टिक डिजीजेस होती हैं किडनी की, लाइक congenital polycystic kidney disease, which is an autosomal recessive or autosomal dominant disorder, and it may be caused by other factors also, like we have autosomal recessive polycystic kidney disease or autosomal dominant polycystic kidney disease. So we have two. Got it?
Then we have other syndromes and other things also. We should not discuss about that. We are going to go look at this. Can you see? Double ureter. Double ureter initially and then combine to make one. Can you see? And this will be the ectopic ureter. Like this is the normal ureter. This is the path of normal ureter. पहले येलो कलर में नॉर्मल यूरेटर दिखाया हुआ है और रेड कलर में एक्टोपिक यूरेटर दिखाया हुआ है, मतलब एक ऐसा यूरेटर जो जाके यूरिनरी ब्लैडर की जगह कहीं और खुल रहा है, मतलब इट इज ओपनिंग समवेयर एल्स लाइक इन दी वजाइना or in the urethra or directly on the outside in the vestibule or like can you see? तो ऐसा भी होता है, एक्टोपिक यूरेटर भी हो सकता है जो यूरेटर होगा वो यूरिनरी ब्लैडर में जाने के बजाय कहीं और जाके ओपन हो जाएगा एंड दैट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स. फाइन. शुड वी मूव फर्दर? नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट रीलोकेशन ऑफ किडनी. नाउ देखो, तुमने खुद देखा कि जो टेल एंड है, जो एम्ब्रियो का टेल एंड है, वहां पर प्रेजेंट है हमारी मेटा नेफ्रिक किडनी. कैन यू सी दैट? अब हमारी किडनी सैक्रल रीजन में या नीचे पेल्विस में तो नहीं होती है, हमारी किडनी प्रेजेंट है एब्डोमेन में एंड इट इज प्रेजेंट इन द रीजन ऑफ T12 to L3, राइट? तो उस रीजन में यानी लंबार रीजन में हमें उसे वापस लेके आना है. सैक्रल रीजन में किडनी नहीं होती है, भले ही इनिशियली ये इसी रीजन में डेवलप कर रही है, बट लेटर ऑन व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू रीलोकेट द किडनी. तो यहाँ पे दो तीन चीजें होने वाली हैं जो मैं तुम्हें बताती हूँ. देखो, सबसे पहले किडनी असेंट करेगी, मतलब ऊपर की तरफ माइग्रेट करेगी. दूसरी बात, किडनी का होने वाला है मीडियल रोटेशन. लाइक किडनी इज समथिंग लाइक दिस, तो किडनी विल मीडियली रोटेट. डू यू गेट इट? ताकि किडनी के जो हाइलम वाला पार्ट है, सो लेट अस से दिस इज द किडनी और ये किडनी का हाइलम वाला पार्ट है, तो इनिशियली किडनी का हाइलम वाला पार्ट एंटीरियरली लोकेटेड होता है, तो उसे मीडियली रोटेट करना पड़ेगा ताकि किडनी का हाइलम वाला पार्ट मीडियल साइड पे आ जाए. So first is ascent of the kidney. Kidney will go up from the sacral region to the lumbar region. क्योंकि जैसे जैसे टेल फोल्ड जो है आगे और डेवलप करेगा, चीजें हमें वापस से रीलोकेट करनी पड़ेंगी. तो ये ऐसे वापस ऊपर की तरफ जाएगा और जैसे जैसे किडनी ऊपर की तरफ जाएगी वैसे वैसे उसकी रीवैस्कुलराइजेशन भी होगी. मतलब क्योंकि डॉर्सल एओर्टा पूरी बॉडी में नीचे तक प्रेजेंट होता है, तो पहले उसकी जो आर्टीरियल सप्लाई आ रही होगी, किडनी के अंदर जो आर्टरी जा रही होगी वो सैक्रल रीजन से जा रही होगी. बट क्योंकि सैक्रल रीजन से धीरे धीरे किडनी ऊपर आ रही है, तो उसका रीवैस्कुलराइजेशन होता जाएगा, मतलब दोबारा दोबारा उसको आर्टीरियल सप्लाई उसी सेम रीजन से मिलती जाएगी जहां जहां वो रिलोकेट कर रही है. एंड एट द एंड उसका जो वैस्कुलर सप्लाई यानी आर्टीरियल सप्लाई होगा वो लंबार रीजन में आ जाएगा. सो डू यू गेट इट? तो ये रीलोकेशन कब स्टार्ट होता है? ड्यूरिंग वीक 6 to 9 इट स्टार्ट्स रीलोकेटिंग. तो सबसे पहले असेंट होता है सैक्रल से लंबार रीजन में, उसके बाद उसका मीडियल रोटेशन होता है, उसके बाद उसकी धीरे धीरे जब वो असेंड कर रही होती है तो धीरे धीरे उसका रीवैस्कुलराइजेशन होता जाता है और लास्ट में एक रीनल आर्टरी, परमानेंट रीनल आर्टरी बनती है इन द लंबार रीजन, क्योंकि किडनी भी उसी रीजन में प्रेजेंट है. ठीक है. और जो ओरिजिनली जब किडनी जहां पे बन रही थी सैक्रल रीजन में और वहां पे जब उसे आर्टीरियल सप्लाई मिली थी, जो वो रिग्रेस हो जाएगी, धीरे धीरे डिजेनरेट हो जाएगी, बिकॉज वी डोंट नीड दैट एनी मोर. डू यू गेट इट? सो यहाँ पे इस किडनी का असेंट दिखाया हुआ है, सो यू कैन सी दैट. इज इट ओके? शुड वी मूव फर्दर? नाउ एक चीज और मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ यहीं पे. Can you see another thing forming? This is the cloaca. Cloaca is the common chamber जहां से हमारा यूरिनरी सिस्टम का पार्ट और हमारा हाइंड गट का पार्ट
द एनल रेक्टल रीजन, वो बनने वाला है। तो तुम ध्यान से देखो, ये जो क्लोएका है इट विल डिवाइड इनटू टू, सो इट विल फॉर्म दिस होल थिंग and this thing. So this will be your rectum and anus, like anorectal region, and this will be urinogenital sinus, which will further develop into urinary bladder and urethra. So you can see कि जो यूरेटर की ओपनिंग है वो यहीं पर आके जुड़ रही है, लाइक दिस पार्ट ऑफ द यूरोजेनाइटल साइनस विल फॉर्म द यूरिनरी ब्लैडर, इफ दिस मेक सेंस। तो ये वाला पार्ट यूरिनरी ब्लैडर बनेगा और उसके नीचे का सारा पार्ट यूरेथ्रा बनेगा, और भी चीजें वहां पे बनेंगी, जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड एंड एवरीथिंग। तो बहुत सारी चीजें अभी बनने वाली हैं, तो वी विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो। बट उससे पहले जो हमने असेंट ऑफ द किडनी पढ़ा है, और जो भी हमने ये पढ़ा है उसमें भी फिर क्लिनिकल कोरिलेशंस हैं, मतलब उसमें भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? सबसे पहला है कि किडनी ठीक से असेंट ही ना कर पाए, और किडनी स्टिल इज प्रेजेंट इन द पेल्विक रीजन, सो इट विल बिकम द पेल्विक किडनी। ठीक है, सो यू कैन सी द डायग्राम हियर, ये किडनी जो है पेल्विस में प्रेजेंट है। एज यू कैन सी यहाँ पे जो है एओर्टा का बाइफर्केशन हो रहा है कॉमन इलियाक आर्टरीज में, और यहाँ पे किडनी प्रेजेंट है। So this is pelvic kidney. Other than that, there is this thing known as horseshoe shaped kidney. तो जिसमें आप देख सकते हैं दोनों किडनी यहाँ पे merged हैं, and they cannot move past this point because क्या आ गया है बीच में, this is inferior mesenteric artery, तो यहाँ पे ये अटक गया है ये वाला पार्ट। So this is the horseshoe shaped kidney. Other than that, we have accessory renal arteries, like जो normal renal arteries हैं उसके अलावा extra renal arteries will be present in the case of accessory renal arteries. And this is again the same diagram for horseshoe shaped kidney. Fine. Is it okay? चलें आगे। नाउ फंक्शन ऑफ किडनी मैंने पहले ही बता दिया है कि जो किडनी है वो फंक्शनल हो जाएगी नियरली अराउंड द 12th वीक, और फिर वो बेबी जो है एमनियोटिक फ्लूइड को एनगल्फ करेगा, और वही सेम जो है फिल्टर आउट होके बाहर आएगा किडनी से फिल्टर आउट होके। तो पूरा वो एमनियोटिक फ्लूइड में ही जा रहा है। So urine will be passed in the amniotic fluid only, and it will mix with the amniotic fluid only, which again will be swallowed by the fetus, and it recycles through the kidney. तो ये चलता ही रहेगा। Fine. Should we move further? Because we have a lot to talk about. Fine. So now we have bladder and urethra. So we have to talk about the development of bladder and urethra. देखो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि क्लोएका है, क्लोएका में से दो पार्ट्स डिवाइड हो गए, एक बन गया यूरोजेनाइटल साइनस और पीछे वाला बन गया एनोरेक्टल पार्ट, जिसमें से एनस और रेक्टम बनने वाला है। तो जो देखो यहाँ लिखा भी है, क्लोएका डिवाइड्स इनटू यूरोजेनाइटल साइनस एंटीरियरली एंड एनल कैनाल पोस्टीरियरली, और बीच में एक सेप्टम प्रेजेंट होता है, एंड दैट सेप्टम इज नोन एज यूरोरेक्टल सेप्टम। यहाँ पे मैंने दोबारा डायग्राम नहीं लगाया, सो अगेन आई विल कम बैक टू दिस डायग्राम। तो ये जो बीच में सेप्टम बना है, दिस इज द यूरोरेक्टल सेप्टम, एंड इस सेप्टम का जो ये एंड पॉइंट होगा, यहाँ ये वाले पॉइंट पे बनेगी पेरिनियल बॉडी, लाइक दिस पॉइंट विल फॉर्म पेरिनियल बॉडी। इज इट फाइन? Tip of this septum will form perineal body. So now what we will do, हमें पता है यूरोजेनाइटल साइनस जो है ये एंटीरियर वाला पार्ट है, और प्लीज ये ध्यान दें कि यूरोजेनाइटल साइनस जो है एलेंटॉइड से पूरा कम्युनिकेशन करेगा योक सैक के साथ, तो जो कि बाद में रिग्रेस हो जाएगा, एंड इट विल फॉर्म यूरेकस, and later on it will form median umbilical ligament. Is it okay?
सो आई विल शो यू ऑल द थिंग्स राइट नाउ। बट पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जो यूरोरेक्टल, सॉरी, यूरो जेनाइटल साइनस है, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। सो अब हम इस यूरोजेनाइटल साइनस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, और फिर हम इन तीनों पार्ट्स की धीरे धीरे डेवलपमेंट देख लेंगे कि इनसे क्या क्या बनने वाला है। ये मेन बात है कि इन 3 चीजों से क्या क्या डेवलप होगा। देखो, जो सबसे ऊपर की तरफ लार्जेस्ट पार्ट है, इससे यूरिनरी ब्लैडर बनेगा क्योंकि ये लार्जेस्ट पार्ट है। ठीक है, सो दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट, देन वी हैव a pelvic part and lastly we have a phallic part. So phallic part क्यों बोला मैंने इसको, तुम ये देख रहे हो, ये जो पोर्शन ऐसे बाहर की तरफ निकल रहा है, दिस इज द phallus, दिस इज द phallus। तो इस पार्ट में जो भी छोटा सा पार्ट ऑफ यूरोजेनाइटल साइनस है, इसको हम बोलते हैं phallic part of यूरोजेनाइटल साइनस। वी हैव pelvic part and then we have the big largest part जो कि खुद यूरिनरी ब्लैडर में डेवलप होने वाला है। Do you get it? And the pelvic part and phallic part together are known as definitive urogenital sinus. Now I want to tell you something. प्लीज इसको ध्यान से सुनना। मैंने पहले ही बता दिया है कि इससे यूरिनरी ब्लैडर और इससे यूरेथ्रा बनने वाला है। तो तुम यहां देख भी सकते हो कि पेल्विक पार्ट से प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, वो वाला यूरेथ्रा जो प्रोस्टेट के बीच में से पास करता है, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा बनता है मेल्स में, और पूरा ही यूरेथ्रा फीमेल्स का इसी पार्ट से बनता है। ऑन दी अदर हैंड जो फैलिक पार्ट है, फिर ये क्या बनाएगा, जैसे फीमेल्स में इसने तो एंटायर यूरेथ्रा ही बना दिया, तो फिर फैलिक पार्ट क्या बनाएगा फीमेल्स में, इट विल फॉर्म द वेस्टिब्यूल ऑफ द वेजाइना। But in males, it will form penile urethra because that phallus thingy will develop into the penis. So it will form the penile urethra. Do you get it? अगेन द सेम थिंग जो मैंने तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले बताई थी कि पूरा यूरिनरी ब्लैडर एलेंटॉइस से कंटिन्यूअस होता है, बाद में एलेंटॉइस ऑब्लिटरेट हो जाएगा, डीजेनरेट हो जाएगा और यूरेकस बना लेगा, और लास्ट में यूरेकस जो है फॉर्म करेगा मीडियन अम्बलाइकल लिगामेंट। नाउ डू यू अंडरस्टैंड समथिंग? इज इट ओके? डू यू गेट इट? लाइक सी, phallic part grows as genital tuber and it develops differently between the two sexes that I already told you. Do you get it? ठीक है, ठीक है, पहले मैं एक बार मैं तुम्हें वो चीज दिखा लाती हूँ। मेरे को एक और चीज दिखानी है, मुझे पूरा मैंने लिखा हुआ है अलग से। क्लोएका, है ना, वी आर टॉकिंग अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द क्लोएका। सो क्लोएका में देखो हमारे पास क्या क्या है, द क्लोएका, देन वी हैव द एलेंटॉइस, एंड जो जो इसको वो कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, एंड बीच में एक सेप्टम बन रहा है, दैट इज द यूरोरेक्टल सेप्टम, क्योंकि ये यूरोजेनाइटल साइनस होगा और ये हाइंडगट का पार्ट होगा, और द एनल कैनाल यू कैन कॉल इट, और एनोरेक्टल कैनाल यू कैन कॉल इट। So you can see what do we have? This is the phallus. This is the blue thingy. Now you can see the पूरा blue thing जो है, this is urogenital sinus, जिसमें ऊपर वाला part urinary bladder बनाने वाला है। Then the pelvic part will form the prostatic urethra and membranous urethra in males, but in females it forms the entire urethra, and the phallic part that is going to form penile urethra in males, but in females it forms the vestibule of the vagina. So I will show you what all things do we have. Let us start with here. So हमारे खुद यूरोजेनाइटल साइनस के 3 पार्ट्स डिवाइडेड होते हैं। वी हैव द वेसाइकल पार्ट, पेल्विक पार्ट एंड फैलिक पार्ट। वेसाइकल पार्ट से हमारा यूरिनरी ब्लैडर बन जाता है। पेल्विक पार्ट और फैलिक पार्ट को हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, आर यू रेडी? ठीक है,
तो देखो यहाँ पे मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट भी दिखाया हुआ है, क्योंकि मैंने बताया था एलेंटॉइस, एलेंटॉइस से बन जाएगा यूरेकस, यूरेकस से बनेगा मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट। ठीक है, चलें आगे। अच्छा, अब मुझे एक और बात बतानी है। देखो, तुम्हें वो याद है मीजोनेफ्रिक डक्ट, जो मेल्स में परसिस्ट करती है, फीमेल्स में पूरी तरीके से डिसअपियर हो जाती है। बट मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि जो डिस्टल एंड होता है मीजोनेफ्रिक डक्ट का, मीजोनेफ्रिक डक्ट का ही जो एंडिंग पार्ट होता है, वो यूरिनरी ब्लैडर में ही इनकॉर्पोरेट हो जाता है। मतलब उसी के अंदर पूरा इनकॉर्पोरेट हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है और बनाता है ट्राइगोन ऑफ द ब्लैडर। दिस पार्ट ऑफ द ब्लैडर इज फॉर्म्ड बाय the mesonephric duct getting incorporated in the urinary bladder। अब तुम एक बात समझो, मेरी प्लीज बात समझना। जो हम ये यूरोजेनाइटल साइनस पढ़ रहे हैं ना, ये एंडोडर्मल स्ट्रक्चर है। क्लोएका इज एन एंडोडर्मल स्ट्रक्चर, बट जो हमारा मीजोनेफ्रिक डक्ट है वो मीजोडर्मल स्ट्रक्चर है। यानी कि ये पूरा यूरिनरी ब्लैडर एंडोडर्म से बन रहा है, लेकिन ये वाला पार्ट जो है पहले मीजोडर्म से बनेगा, बाद में वो फिर कन्वर्ट हो जाएगा एंडोडर्मल पार्ट में। बट कैन यू सी कि वो मीजोडर्मल पार्ट इसमें इनकॉर्पोरेट हुआ है। प्लीज इस बात को ध्यान रखना। क्या आप समझ गए? देखिए, ये मीजोनेफ्रिक डक्ट वाले पार्ट की बात की जा रही है। शुड वी मूव फॉरवर्ड? सो आई वॉन्ट टू टेल यू कि पेल्विक पार्ट ऑफ जी जो यूरोजेनाइटल साइनस है, इट इज फॉर्मिंग प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, membranous urethra, as well as it will form the prostate gland. It will also form the prostate gland. Please remember this. On the other hand, in females it forms the entire urethra, and it also gives rise to some glands like paraurethral glands that are known as Skene's gland, that are homologous to male prostate gland. ठीक है। एंड लास्टली द फैलिक पार्ट, जो कि मेल्स में बनाने वाला है पीनाइल यूरेथ्रा। नाउ आई ऑल्सो वॉन्ट टू शो यू समथिंग। देखो, मेल्स में जो फैलिक पार्ट है ये बनाएगा पीनाइल यूरेथ्रा। बट मैं एक बात बता दूं कि जो पीनस में जो एंडिंग पोर्शन ऑफ द यूरेथ्रा होता है, नाउ सी, ये है पूरा पीनाइल यूरेथ्रा, बट कैन यू सी ये जो एंडिंग पोर्शन है, ये है सॉलिड एपिथेलियल कॉर्ड। ये कैसे बनती है? ये एपिथेलियम का ही यहाँ पे इन अंदर की तरफ एपिथेलियम आता है बाहर से, और फिर वो यहाँ पे एंड पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा यानी टर्मिनल पार्ट ऑफ द मेल यूरेथ्रा बनाता है। यानी कि जो टर्मिनल पार्ट ऑफ द मेल यूरेथ्रा बनेगा वो एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होगा, क्योंकि वो एक्टोडर्म बाहर से अंदर की तरफ टिप में ग्रो करता है और फिर वहां का यूरेथ्रा बनाता है। तो प्लीज ये वाली चीज याद रखें कि जो टर्मिनल यूरेथ्रा बन रहा है दैट इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, बाकी का पूरा पीनाइल यूरेथ्रा इज मीजोडर्मल इन ओरिजिन, जो कि बन रहा है एक्चुअली एंडोडर्मल इन ओरिजिन, जो कि बन रहा है यूरोजेनाइटल साइनस से। ठीक है। इसके अलावा फैलिक पार्ट से ही बनते हैं हमारे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स इन मेल्स। ऑन द अदर हैंड, इन फीमेल्स व्हाट विल हैपन? In females, it will form the vestibule of the vagina. Along with that, it will form greater vestibular glands, the Bartholin's gland and lesser vestibular glands. So you can see this whole thing is the vestibule of the vagina, and it is also forming the two glands that are greater vestibular glands, that is the Bartholin's gland and lesser vestibular glands. This is what मेरे को जो तुम्हें बताना था. Now we will get back and see कि कुछ बचा है क्या. तो देखिए यहाँ पे सब लिखा हुआ है। एंड सिंस बोथ mesonephric duct and ureter origin in mesoderm, mucosa of bladder formed by incorporation of the ducts, the trigone of bladder is also mesodermal, and with time it is replaced by endodermal epithelium. Do you get it? Do you get it?
ठीक है, तो ये सब मैंने तुम्हें बता दिया है, प्रोस्टेट ग्लैंड और ये सब सब मैंने तुम्हें बता दिया है। तो प्लीज गो थ्रू दिस एंड दैट्स इट। दिस इज द होल embryological development of the urinary system. We are done with that. Congrats. So that's it for today. We will meet again in another lecture with another topic. Till then, bye bye. Take care. Ta ta.